السلام علیکم میرے پاکستانی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میرا نام ہے ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں NZM ریئیکشن یوٹیوب چینل۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں آپ سب لوگ سبسکرائب، تو بڑی مہربانی، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹ کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت عباس غازی علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے کھڑے رہے، اور ان کا حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ان کا آپس میں ریلیشن ہے، اور کربلا کے بارے میں کیا ان کے ساتھ جو کربلا میں ہوا ہے اس کے بارے میں آج انفارمیشن دی گئی ہے۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کربلا کا وہ منظر کیسا تھا جب 10 محرم حرام کو یہ واقعہ جب کربلا جو ہے وہ پیش آیا۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں، ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ لہذا حضرت عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، پاکی، سخاوت، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کر لیا، اور کچھ عرصوں بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنے گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے، اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ امام حسن و حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ ایک دراز قد شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المومنین حضرت علی نے جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ امام حسین کے دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔
जब यजीद बिन मुआविया सन 61 हिजरी को तख्ते नशी होता है तो फौरन हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को हिरासत में लेकर दमिश्क बुलाया जाए और उन्हें बैत पर मजबूर किया जाए। लिहाजा लश्कर शाम जब मक्का पहुंचती है तो इमाम हुसैन उस वक्त करबला रवानगी की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अब्बास इब्ने अली ने अपने भाई की हिमायत और बनु उमैया की सरकशी के खिलाफ मक्का में एक ज़बरदस्त खुतबा दिया। आपने फरमाया, हम्द है अल्लाह के लिए जिसने इस काबे को मेरे मौला हुसैन के वालिद अली के कदम से शर्फ बख्शा, जो कि कल तक पत्थरों से बना एक कमरा था और उनके ज़हूर से किबला हो गया। ऐ बदतरीन काफिरों और फाजिरों, तुम इस बैतुल्लाह का रास्ता नेक और पाक लोगों के इमाम के लिए रोकते हो, जो कि अल्लाह की तमाम मखलूक से इसका ज़्यादा हकदार है। और अगर अल्लाह का वाज़ेह हुक्म ना होता और इसके बुलंद इसरार ना होते तो यही अल्लाह का घर खुद उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता, लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद इसके पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक लोग हजर असवद को चूमते हैं और हजर असवद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। अल्लाह की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है और मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। खुदा की कसम, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे अकाब गजबनाक होकर उड़ता हुआ चिड़ियों पर हमला करता है और तुमको चीर फाड़ कर रख देता। वाक़या करबला के वक्त हज़रत अब्बास की उम्र 33 या 35 साल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर हुसैन का अलमदार करार दिया था। इमाम मजलूम अपने भाई अब्बास और 72 साथियों समेत एक मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचे, जहां 30,000 से जायद यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने इस काफिले को रोक दिया और फरात का पानी बंद कर दिया। यजीदी लश्कर के साथ जंग का आगाज होता है और एक एक कर काफिला हुसैनी के बहादुर शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को लड़ने की इजाज़त नहीं दी। करबला में हज़रत अब्बास ने अपनी शहादत से एक तारीख रकम की थी। आप हुसैनी फ़ौज के एक काबिल तरीन और माहिर सिपहसालार थे। रिवायतों में आता है कि जब तक जनाब अब्बास हुसैनी लश्कर में मौजूद रहे, यजीदी लश्कर में मौजूद कोई सिपाही भी चैन की नींद न सो सका। जब आशूरा की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से कहा कि रात के अंधेरे का सहारा लेकर जिसका जी चाहे यहाँ से जा सकता है, क्योंकि कल की सुबह शहादत यकीनी है, उस वक्त सबसे पहले जनाब अब्बास ने अपनी वफादारी का ऐलान किया और कहा, ए इमाम, हम किस लिए आपका साथ छोड़ें? हम आपको हरगिज़ दुश्मनों के मुकाबले में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक आपकी हिमायत में रहेंगे। 10 मुहर्रम रोज़े आशूरा को जब हुसैनी खेमे में पानी ख़त्म हो गया और बच्चे प्यास से रोने लगे, इमाम अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना प्यास की शिद्दत से बदहाल थी। जब जनाब अब्बास ने ये मंजर देखा तो उनसे रहा न गया, लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन की इजाज़त मांगी और पानी लेने के लिए फर्रात की तरफ निकल पड़े। अम्र साद मलून ने 4000 सिपाहियों का लश्कर फरात के किनारे खड़ा कर दिया था। हज़रत अब्बास फरात की तरफ बढ़े तो अम्र बिन हज्जाज और उसके सिपाही रास्ता रोकने के लिए सामने आ गए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से उनकी शदीद झड़प हुई, मगर बनी हाशिम के इस शेर के सामने कौन टिक सकता था। आपने दुश्मन पर ऐसे पे दर पे हमले किए कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। हज़रत अब्बास दरिया के करीब गए, पानी को हाथों के चुल्लू से उठाया। आप खुद भी शदीद प्यासे थे, मगर जब ये ख्याल आया कि उनकी प्यारी मासूम भतीजी वहाँ खेमे में पानी के इंतज़ार में होगी तो आपको गवारा न हुआ कि पानी पिएं। लिहाजा आपने पानी से हाथों को वापस खींच लिया और मशकीज़े में पानी भरकर खेमे की तरफ रवाना हुए। अचानक यजीदी लश्कर ने पीठ पीछे हमला कर दिया। तीरों और नेज़ों की बारिश हुई। जनाब अब्बास के दोनों बाजू जख्मी हो गए। बाजुओं के जख्मी होने के बाद आपने मश्क को अपने कंधों में ले लिया और यजीदी लश्कर से सामना किया। उस शेर की एक दहाड़ से सिपाही चारों तरफ बिखर जाते थे और मैदान में घमसान मचा हुआ था। आखिर यजीदी सिपाहियों ने तीर से उस मशकीज़े को भी तोड़ दिया। सख्त लड़ाई शुरू हो गई। हजरत अब्बास की तलवार बिजली की तरह जिस पर पड़ती उसके टुकड़े कर देती। बेदरीग यजीदियों को आपने वासिले जहन्नम किया। अचानक पीछे से एक सिपाही ने आपके हाथ पर हमला किया और आपके बाजू कट गए।
यजीदियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। आप जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेज़ रफ्तारी से वहाँ तशरीफ़ लाए, अपने भाई को गोद में उठाया। हज़रत अब्बास ने भाई को देखा और सरगोशी करते हुए कहा, मेरे भाई, और फिर आपकी रूह प्रवास कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, आज अब्बास की शहादत से मेरी कमर टूट गई। फरात का बहाव सर्दियों की तरह तारीक हो गया, आसमान सुर्ख हो गया और हाशमियों का ये चांद अपनी जवानी की उरूज में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को फरात के किनारे शहीद हो गया। तो जी दोस्तों, वीडियो में हमने जो देखी है कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के वो छोटे भाई थे और वो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा खड़े रहे। आपकी उम्र जो है वह 33 से 35 बरस जो है वो बताई जाती है। तो आप माशाल्लाह कद आवर इंसान थे। तो आप जो है वो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के पीछे डाल की तरह उनके साथ मजबूत रहे। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जब आपके दोनों हाथों को चूमा, जब आपकी पैदाइश हुई तो आपको दोनों बाजुओं को चूमा, तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि आप जो क्यों चूम रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये करबला में ये अपने दोनों जो बाजू हैं उनके ये शहीद हो जाएंगे हज़रत अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वाकई एक दिलेर और बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो जो करबला का जब टाइम आया तो उन्होंने पानी की खातर जब वो पानी लेने गए तो यज़ीदी लश्कर जो था उन्होंने आप पर वो हमला किया और आप बहुत देर तक उनके साथ लड़ते रहे। लेकिन उनमें से एक यज़ीदी फ़ौज का जो सिपाही था उन्होंने आपके बाजू के ऊपर वार किया और आपका बाजू जो है वो कट गया। तो आप किस तरह उस लम्हे में से गुज़रे तो वो अल्लाह जानता है, जो आप जानते हैं। ज़ाहरी तो वो लड़ाई जो है वो यज़ीद पानी की थी, लेकिन वो पानी की लड़ाई नहीं, वो हक़ और बातिल की लड़ाई थी। तो जिनमें करबला के दिन 10 मुहर्रम को जब ये वाक़या पेश आया, करबला का मंज़र था, तो हर तरफ देखें कैसे ये मंज़र बयान ही नहीं किया जा सकता, इस तरह का वो मंज़र था। क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी खातर हमारे बड़ों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी जान शहादत का नजराना देकर अपने दीन को बचाया। तो ज़ाहरी तो यज़ीद जो था वो मर गया, मिट गया, ख़त्म हो गया, उसका कोई नाम लेवा नहीं है अभी। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो हैं उनके देखें घर घर में जब भी कोई मुसलमान पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप कहीं ना कहीं अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अब्बास नाम ज़रूर सुनेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यज़ीद का तो कोई अभी नाम नहीं लेता। तो जो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई इसमें। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।